ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के अनुसार नदी घाटों से बालू उठाने का कार्य बंद है। इसके बावजूद खोरीबाड़ी बाजार से होकर अवैध रूप से लॉरी में बालू तस्करी किए जाने का मामला सामने आया है। क्या आप मां बनने का सपना देख रहे हैं? एडवांस फर्टिलिटी केयर का अनुभव करें उस एक्सपर्ट टीम के साथ जिस पर परिवार भरोसा करते हैं, जहां होप बदलती है नई शुरुआत में। पेरेंटहुड की ओर अपना पहला कदम बढ़ाइए। न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी, आपकी नई शुरुआत यहीं से होती है। Introducing TrueBeam with Hypersight, first time in West Bengal and Northeast India. Fourth installation in India. Now at Hope and Heal Cancer Hospital, Siliguri. मंगलवार देर रात स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोरीबाड़ी बाजार में एक संदिग्ध लॉरी को रोककर पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक नदी घाट बंद होने के बावजूद बालू तस्करी कैसे हो रही है, इस पर संदेह होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लॉरी को रोककर चालक से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान चालक के बयान और लॉरी के दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद खोरीबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच करते हुए चालक समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया। घटना की सूचना मिलते ही भूमि एवं भूमि राजस्व अधिकारी प्रतिमा सुब्बा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लॉरी के दस्तावेजों की जांच कर अनियमितताओं की पुष्टि की और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ भविष्य में लगातार अभियान चलाने की बात कही। घटना की खबर मिलते ही फांसीदेवा विधानसभा के विधायक दुर्गा मुर्मू सहित कई भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। विधायक ने पूरे मामले का निरीक्षण किया और खोरीबाड़ी थाने के प्रभारी अधिकारी तथा भूमि राजस्व अधिकारी प्रतिमा सुब्बा के साथ आपात बैठक किया। विधायक दुर्गा मुर्मू ने कहा कि सरकारी निर्देश और ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्पष्ट रोक के बावजूद खोरीबाड़ी और आसपास के इलाकों में जिस तरह अवैध बालू तस्करी और डंपिंग हो रही है, उसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों को चलने नहीं दिया जाएगा। আজকে আমাদের এই খড়িবাড়ি অর্থাৎ এটা বাস্তবে অর্থাৎ বিগত বছর অর্থাৎ তৃণমূলের সময়ে বিভিন্ন রকমের কুকর্ম চলত। এখন ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ আমাদের বিজেপি সরকার অর্থাৎ এই সরকার যখন এসেছে, বাস্তবে সেটা আমি কাউকে দোষারোপ করতে চাই না, কোনো প্রশাসনকেও দায়িত্ব দোষারোপ করতে চায় না। সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে আজকে এই ধরনের অর্ডার পাওয়ার সত্ত্বেও কোনো ঘাট চলবে না, কোনো জায়গায় ডাম্পিং চলবে না। কিন্তু আজকে আমরা এই মুহূর্তে আমরা দেখেছি বাস্তবে ডাম্পিং চলছে, এখানে বাস্তবে অবৈধভাবে সেখানে বালু পাচার হচ্ছে। দেখেন, আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটাই কথা বলা হয়েছে, বা আমাদের শুভেন্দুদা সিএম যিনি আছেন উনিও বলেছেন যে ইলিগালি কোনোভাবে কোনো জায়গায় কোনো জিনিস আমরা করতে দেব না। তো স্বাভাবিকভাবে আজকে আমরা দেখেছি আমাদেরই সরকার আর যেভাবে কিছু চোর ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে এখান থেকে বালু পাচার করছে। অর্থাৎ আমরা জানি লিগালি যদি ঘাট হয় বা যেটা অর্ডার বেরিয়ে গেছে 2 মাস 12 দিন কোনো ঘাট চলবে না, যেহেতু গ্রিন ট্রাইব্যুনাল এই সমস্ত জায়গায় কোনো ক্ষতি না হোক। এবং এই সমস্ত বিপর্যস্তর সময় যখন সরকারিভাবে একটা অর্ডার এসেছে, আমি একটাই কথা বলতে চাই, আমি অত কিছু আইন জানি না, একটুই জানি, সেটা হচ্ছে যে 2 মাস 12 দিন অর্থাৎ যে সমস্ত ঘাট বন্ধ করা আছে এই মুহূর্তে না ডাম্পিং গাড়ি চলবে, না কোনো বালু থেকে কোনো নদী থেকে কোনো ডাম্পিং করা হবে, এটা যাতে না হয়। অর্থাৎ এই সময় 2 মাস 12 দিন যেটা অর্ডার আছে সরকারি পক্ষ থেকে এইভাবেই চলুক এবং আগামী দিনে আমরা এই সমস্ত যাতে বৈধভাবে আমরা যাতে এই ঘাটগুলো চালাতে পারি এবং এই রাত্রের সময় কোনো যাতে এই ধরনের আমরা আজকে প্রশাসনিক আজকে বিএলআরও আজকে আমরা এখানে খড়িবাড়ি বড়বাবু আছেন, আমরা চেয়েছি যাতে অবৈধভাবে কোনো ঘাট না চলে, যাতে সঠিক মতো চলে। অর্থাৎ সরকার যদি থাকে আমরা থাকব, সরকার যদি যখন ধ্বংস হয়ে যায় কোনো জনগণ ঠিক থাকতে পারে না। তো স্বাভাবিকভাবে আজকে এটাই আমরা বলতে চেয়েছি, আগামী দিনে যেভাবে বিগত যেভাবে সরকার যেভাবে চালিয়েছে সেভাবে নয়, সিস্টেমেটিক চলুক। কিন্তু এই 2 মাস 12 দিন যেহেতু সরকার অর্ডারে বন্ধ করা আছে, আমরা চেয়েছি সমস্ত বালু ডাম্পিং বা কোনো জায়গা থেকে বালু খনন না করা হয়, কোনো জায়গা থেকে যাতে বালুরা পাচার হয়, যদি সেভাবে হয় সেটা কিন্তু আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যাবে এবং যেভাবে সেটা আইনে যেটা আমাদেরকে শাস্তিমূলক সেটা প্রশাসনিক করবে। দেখেন, এটা সম্পূর্ণভাবে আমি একটাই বলবো
আমরা সরকারে আছি, আমি জনপ্রতিনিধি, আমি সরকারকেও আগামী দিনে একটা সার্ভে চলবে, এই জায়গা থেকে, এই চিকেন নেক এলাকা থেকে কোনো গাড়ি যদি এভাবে যদি চলে, তাহলে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্চ পদাধিকারীকে ইনফরমেশন করে সেটা যথাযথ যেটা আধিকারিকের প্রতি যদি সেটা শাসন ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটা নিশ্চয়ই সরকার করবে এবং সেটা আমি আমার পক্ষ থেকে আমি উচ্চ নেতৃত্বকে জানাবো। অর্থাৎ এই সরকার অর্ডারে যদি কেউ যদি নীতি না মানে, অর্থাৎ সেখানে আমরা সেভাবেই কিন্তু পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং তাদেরকে কোনো রেহাই দেওয়া যাবে না। দেখেন, এখানে আমরা দেখেছি এইভাবে, অর্থাৎ অর্ডার বেরোনোর পরেও এই সমস্ত গাড়ি কেন বন্ধ হচ্ছে না, কী কারণে বন্ধ হচ্ছে না, কারা তাদের মদতে আছে সেটা আমরা দেখেছি। আমরা সেটা বাস্তবেই হয়তো লুকোচুরি করে যে সমস্ত লোক ব্যক্তিরা নিচ্ছে, সেটা আগামী দিনে যে সমস্ত আধিকারিকরা আসছে সেটা আইনের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নেবে। এটা ফ্যাক্ট, এটা আমরা নিশ্চয়ই কালকে, আমিও বলেছি, আমরা 11টায় আসছি, আমরা কালকে সেটা ছানবিন করব এবং সেটা কোন জায়গা থেকে কিভাবে আসছে, কি কারণে হচ্ছে, কেমনভাবে করছে, সেটাও আমরা আধিকারিক বা আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা সবাই মিলে আমরা তদন্ত করে সেটাকে দেখব। আজকে আমি খবর পেলাম যে এখানে একটা গাড়ি ধরা পড়েছে আর ওই গাড়ির কোনো সঠিক চালান নাই বলে ওরা মানে আমাকে ফোন করেছে যে আমরা এরকম করে রাতে একটা ইলিগাল মাইনিংয়ের মতন একটা গাড়ি চলছে। তো কিন্তু আমাদের অফিসার তো দিন রাত রেড করে যাচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন। এর আগেও আপনাদেরকে কিন্তু আমি ডিটেলস দিয়েছিলাম। আমাদের 3 বেলায় রেড হয়, মর্নিং শিফট, ডে শিফট, নাইট শিফট। কিন্তু আমাদের অফিসাররা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তো ওরা রাত 10টা অবধি রেড করলো আমাদের অপোজিট সাইডে, এই যে জায়গাতে গাড়ি ধরা হয়েছে ওই সাইডে না, অপোজিট সাইডে ওরা রেড করে তারপরে শরীর খুবই খারাপ, খুবই ডাউন। আর আমাদের যে অফিস রেডে যে আমাদেরকে হেল্প করে, আমাদের যে অফিসের ড্রাইভার, ও কিন্তু 2 দিন ধরে খুবই অসুস্থ, অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ওরা রেড করতেছিল। তো এভাবে ওরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি চলে গেছে। তখন আমি ফোন রিসিভ করেছি যে এরকম করে গাড়ি ধরা গেছে। তখনই আমি নির্ণয় নিলাম যে না, আমি নিজেই আসবো। তো আমি নিজেই এসেছি আমার আরও সাহেবের সাথে। তারপরে দেখা গেল যে এই যে চালানটা প্রডিউস করেছে, ওই চালানটা আমরা অ্যাপে যখন দেখলাম, ওই চালানটা কিন্তু অ্যাপে কিন্তু ট্রু রেজাল্ট শো করছে না। ওটার জন্য গাড়ি যে ড্রাইভার আছে ওকে ডিটেন করা হলো রাতে। কালকে সকালে আমরা ওটা আবার ভেরিফাই করব। তারপরে আমরা এটা এমএলএ সাহেবের যেটা নির্ণয় আছে ওনার হিসাবে আমরা কালকে ঘাট জয়েন্ট ভিজিট করব, কোথায় কোথায় মাইনিং হবে, কোথায় কোথায় ইলিগাল মাইনিং হচ্ছে, এগুলো কালকে আমরা আবার তদন্ত করব। তো এই জিনিসটা আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম। তো আগামীকালকে আমরা এমএলএ সাহেবের যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, এমএলএ সাহেব নিজেও থাকবেন, তারপরে ওসি সাহেব থাকবেন, তারপরে আমাদের অফিসের স্টাফ, আমাদের আরআই, আমরা সব মিলে এটা জয়েন্ট ভিজিট করব। জয়েন্ট ভিজিট করে আমরা একটা রিপোর্ট তৈরি করব যে কোথায় কোথায় ঘাটটা অফিসিয়ালি দেওয়া আছে, কোথায় ইলিগাল माइनिंग होच्छे, एगुलो कल के আমরা একটু ইনকোয়ারি করব। आज दिन में हमें एक तरह से सूचना मिला कि हम लोगों को पता था कि यहाँ पे 15 टन से ऊपर कोई भी डंपर नहीं जाएगा। सिर्फ हम लोगों को डंपर के बारे में ही पता था। बालू खनन 18 तारीख से यहाँ पे बालू जो भी था यहाँ पे बंद हो गया था। लेकिन जो आज दिन में पता चला कि कोई छोटा छोटा ट्रक में बालू लेके जा रहा है। यहाँ पे जो डैम करके रखा हुआ है बालू, जो बरसात के सीजन में बालू नहीं मिलने के कारण डैम किया जा रहा है। कोई भी सरकारी प्रोग्राम होगा वहाँ पे बालू, कोई भी सरकारी काम हो रहा है वहाँ पे बालू का जरूरत पड़ेगा। बालू आएगा कहाँ से, नदी फ्लैट हो जाएगा, इसलिए डैम करके रखा गया है। मगर यहाँ पे हम लोगों का डुमरिया में बालू खनन हमेशा होते जा रहा है। बालू बंद होने के बावजूद भी वहाँ पे जेसीबी से बालू खनन हो रहा है। हमने कहा था कि बेलरों को देखने के लिए कि कितना बालू आपका डैम पे है। प्रत्येक दिन अगर कहीं आप बालू बेच रहे हैं तो प्रत्येक दिन कम होना चाहिए, मगर प्रत्येक दिन बालू बेचने के बाद भी बालू उतना का उतना कहाँ से आ रहा है। बालू जब बंद है तो बंद होना चाहिए। मगर एक ट्रक में देख रहे हैं यहाँ पे 15 टन का हम लोग का लगा हुआ है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि हम लोग का एक ब्रिज है, छोटा एक कलवट है, सेतु है, वो ब्रिज है कहीं टूट जाएगा तो यहाँ से आवागमन, मान लीजिए उस साइड का आदमी को किसी को कुछ हो गया, एम्बुलेंस आएगा जाएगा कहाँ से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है खोरीबारी में। यहाँ पे 3 स्कूल है, बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे। अभी बरसात का सीजन है, पुल टूट जाएगा तो कौन देगा, जवाबदेही कौन होगा। बालू यहाँ पे बालू हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे कोई भी ट्रक हो, सब्जी को छोड़ करके, किसान को छोड़ करके कोई भी भारी वाहन इस ब्रिज से क्यों जाएगा जब तक ब्रिज का मरम्मत नहीं हो रहा है। ये बालू माफिया कहाँ से लेके आ रहे हैं, बालू माफिया को प्रोत्साहन कौन दे रहा है। बालू माफिया तो घर घर में बाजार में घूम के बोल रहे हैं
कि नई सरकार हुई है, नए नए नेता हुए हैं, नए नए नेता से मिला के चला हूँ। मैं तो बीजेपी करता हूँ, मगर मैंने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ से बालू लेकर जाओ, यहाँ से अवैध खनन करो। खोरीबारी में कौन है जो यहाँ पे प्रोत्साहन दे रहा है बालू खनन करने के लिए, बालू माफियाओं के लिए? यहाँ पे ड्रम्पर लेकर के, ट्रक लेकर के जाया जा रहा है, मगर यहाँ पे कोई भी छोटा छोटा मकान बना रहा है। सबका सपना होता है कि मेरा पक्का का घर हो। आज यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जब मिलेगा तो क्या वो डंपर से माल लेके आएगा? नहीं लेके आएगा, वो ट्रैक्टर से ही माल लेगा। मगर क्या हो रही है, ट्रैक्टर को यहाँ पे सजा दिया जा रहा है, ट्रैक्टर को यहाँ पे माने फाइन दिया जा रहा है। मगर डंपर यहाँ से चला जाए, ट्रक यहाँ से चला जाए, भाई तुम तोप के लेके जाना, ऐसा नहीं चलेगा। खोरीबारी में अभी आँख खुल गया है, ये बंद होना चाहिए। बंद होने के लिए आज जैसे हमको पता चला, यहाँ पे मैंने ट्रक को रोका। हम लोगों के जो हैं एमएलए साहब दुर्गा मुर्मू जी, वो आए हुए हैं, वो देख रहे हैं कहाँ से कागज आया है। जब कागज आपके पास आज का है, आज का कागज है आपके पास, 18 तारीख से हम लोग को पूरी पता है, पूरे बंगाल में हम लोग का 18 तारीख से बंद है। जब कागज आप दिए हैं आज, तो आपका भी लाइसेंस बंद होना चाहिए। कारण कि आपका जो यहाँ पे जो आप डैम्पिंग कर रहे हैं, यहाँ के लोकल काम के लिए आप बंद कर रहे हैं, यहाँ के सरकार के लिए बंद कर रहे हैं। बाहर जाने के लिए आप बंद नहीं कर रही हैं। बाहर जाने के लिए आपको कागज नहीं दिया जाएगा, बाहर हम नहीं जाने देंगे। यहाँ के आदमी के लिए है। इसलिए हम लोगों ने आज रास्ते पे उतरा था, पकड़ा गया। बालू है, था नहीं, था मतलब चला जाता। बालू है, यहाँ पे कागज देखा जा रहा है। और भी कितने ट्रक होंगे जो आएंगे वो पकड़ाएंगे। कितना टन था ये? हम लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो हम उसको पूछा कि आपका कितना टन यहाँ पे माल लोड है, तो वो प्लास्टिक से तोपा हुआ है, छोटा सा डाला है। वो बोल रहा है बोले 30 टन यहाँ पे माल है। तो सोच लीजिए 3 फीट 4 फीट में इतना बड़ा ट्रक में 30 टन माल है, तो 16 चक्का 18 चक्का जाता होगा, तो कितना टन माल जाता होगा? इसका मतलब मेरा अगर ब्रिज टूट जाए, बनाएगा कौन प्रशासन देखने आएगा? सरकार ने तो इस पर 15 टन का लेबल लगा दिया है। उसके बाद में चोर कौन होगा? भू माफिया होगा, बालू माफिया होगा। यहाँ का पब्लिक क्यों भुगते? खोरीबारी का पब्लिक ने क्या पाप किया था? वो खोरीबारी का पब्लिक नहीं भुगतेगा। खोरीबारी का पब्लिक जानता है, जागरूक हो चुका है। ऐसे कारोबार में खोरीबारी का कोई भी नेता, कोई भी पब्लिक ऐसे खनन माफियाओं के साथ नहीं दे। मेरा परिचय है, मैं कल्याण कुमार प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला का एक मेंबर, रानीगंज, बिन्नाबारी, खोरीबारी, बूढ़ागंज मंडल का इंचार्ज।